Good morning, student. Today start chapter number 6, standard 11, lecture number 1st. Name of chapter is Mechanical Properties of Solid. Okay. So we know solid, it is one of the state of matter. State of matter, or it is also called as phase of matter. Phase of matter. So basically matter are classified into various states, that is namely solid state. This is the first state of matter. Second one is a liquid state. Okay. Third one is a gaseous state, and fourth one is a plasma state. और फिफ्थ वाला जो होता है that is Bose-Einstein's condensation, or it is called B condensation. So these are the totally 5 state of matter. So here we focus about the first state of matter, that is a solid state. Now in solid state, molecules are closely placed to each other. So there is a strong intermolecular forces of attraction. Strong molecular forces of attraction and negligible separation between the two molecules of the solid. But when what happens, we apply some external forces on that solid, then what happens, due to applied forces, shape of solid or size of solid changes. Change in shape as well as change in size of that solid. That process is known as first concept of this chapter, called as deformation. So repeat, what is deformation? The process of the phenomena of change in shape or size or both of a body. क्या चेंज हो रहा है? शेप भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है, और बोथ ऑफ बॉडी ड्यू टू externally applied force. Due to external applied force called as deformation. इसे डिफॉर्मेशन कहा जाता है. जो फॉर्म बॉडी है उसे हम डिफॉर्म करते हैं. ओके, ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस. और जो फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस which produces deformation in a body are called as deforming force. That is called deforming force or forces. External forces which are responsible for deformation. Which are responsible for deformation of body. Such forces are called as deforming force or deforming forces. Okay. Now next one is elastic properties of body. Elastic properties of body. So in elastic properties we apply the external applied force. देखो अभी elastic properties of body. पहला प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी. Okay. So in this property, suppose this is a solid, or we call it is a metal rod, metal bar. We apply some external force at the lower end of the bar or metal wire. Then what happens? Length of that metal bar or wire slowly increases. And when we remove the applied force, जो भी लोड है applied, अगर हमने remove कर दिया, remove the applied load, then it back to its original shape and size. Because of internally forces are developed in the body, and such a body are called elastic body. इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडी. मेटल रॉड ले लो या फिर रबर है. दिस इज अ रबर. रबर को हमने स्ट्रेच किया,
rubber become elongate, ये rubber elongate हो गया. Stretch the rubber, it become elongate, and when applied forces are removed, it return to its original shape and size because of internal forces. ये return क्यों जाता है? Because body, inside the body there is a internal forces, and due to the internal forces, body regain its original length, original shape and size. Such a body is known as elastic body, and that property present in the body is called as elasticity. So define elasticity. See here definition of elasticity. It is property of body. बॉडी को या फिर सॉलिड भी कह सकते हैं आप. प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और सॉलिड इन विच बॉडी regain its original shape and size after removal of deforming forces. Deforming force is called as elasticity. And body possess the property of elasticity. जिस बॉडी में प्रॉपर्टी होती है, body possess property of elasticity is called elastic body. उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडी. is called elastic body. So what is the example of the elastic body? There is a few example of elastic body. All metal are elastic body. Then rubber is also elastic body. Okay, sponge material, sponge ball or sponge shape solid is represent the elastic property or elastic body. ओके, लेकिन कोई बॉडी ऐसी होता है कि जो कंप्लीटली रिएगेन होता है, ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं. ओके, ये इलास्टिसिटी हो गया इलास्टिक बॉडी, एग्जांपल ऑफ इलास्टिक बॉडी. नाउ दोज बॉडी व्हिच रिटर्न एग्जैक्टली टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट इज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. अभी कौन सी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है? तो उसका एग्जाम्पल है कॉर्ड्स फाइबर. कॉर्ड्स मटेरियल जो होता है, जो रिस्ट वॉच जो होता है अपना, दिस इज अ क्लॉक. इसका जो सरफेस जो होता है जिसके ऊपर हैंड्स ऑफ क्लॉक रोटेट होते हैं, दैट रिस्ट वॉच सरफेस और क्लॉक सरफेस मेड बाय कॉर्ड्स फाइबर, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बिकॉज देयर इज 100% ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस एंड बॉडी रीअगेन completely and instantaneously. देखो डेफिनेशन, बॉडी regain completely and instantaneously, that is quickly, instantaneously to its original position, original shape and size. मॉलिक्यूल ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं 100% शेप एंड साइज. शेप एंड साइज. Such a body are said to be perfectly elastic body. Okay, so this is about the first property of body, elasticity. Now second property present in the body. अभी दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है बॉडी में, दैट इज टोटली अपोजिट टू इलास्टिसिटी, एंड वी कॉल इट इज प्लास्टिसिटी. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्लास्टिसिटी. अभी प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ बॉडी, वी अप्लाई द फोर्सेस, वेरियस डायरेक्शन से हमने बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई किया है, तो बॉडी चेंज इट्स शेप एंड साइज. ओके, शेप और साइज यहाँ पे बॉडी का चेंज हुआ है, बट ड्यू टू वेरी लो वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस, बॉडी के अंदर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं उसे इंटरनल फोर्सेस कहा जाता है. उनका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, RESTORING, रिस्टोरिंग फोर्स. अगर वो फोर्सेस इस मटेरियल में, प्लास्टिक बॉडी में निग्लिजिबल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, दैट्स व्हाई बॉडी रिटेन देयर डिस्प्लेस पोजीशन. जो भी उसका डिफॉर्म पोजीशन हो एज इट इज रहेगा, परमानेंट. दैट इज कॉल्ड permanent position, never back to original shape and size. That body is a plastic body.
और जिस बॉडी में प्रॉपर्टी होती है उसे हम, इस प्रॉपर्टी का नाम है प्लास्टिसिटी. सो डिफाइन प्लास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it do not regain its original shape and size. देखो, do not regain, रिटर्न नहीं आता है, ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. क्योंकि शेप जो चेंज हुआ है वो रिटेन एज इट इज रहेगा. जो टिल्टेड पोजीशन है, शिफ्ट हुआ, मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट इज परमानेंट, नेवर बैक टू ओरिजिनल डायमेंशन. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. और उस बॉडी का नाम है प्लास्टिक बॉडी. जो बॉडी में प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी. और प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल है क्ले है, वैक्स मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है. ऑल आर एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी. क्ले, वैक्स, मड भी आता है. थिक मड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. नेवर बैक टू ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस. क्योंकि इंटरनल फोर्सेस नेग्लिजिबल है और इट इज वेरी वेरी स्मॉल प्रेजेंट इन द प्लास्टिक बॉडी. नाउ नेक्स्ट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. देखो, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में जो होता है कि दोज बॉडी विच कैन इजीली, जो बॉडी इजीली या फिर स्मूथली, निग्लिजिबल फोर्स अप्लाई करो इजीली डिफॉर्म होगा, विच कैन इजीली डिफॉर्म बाय स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स. अगर हमने वेरी स्मॉल फोर्सेस अप्लाई किया, जस्ट प्रेस करो आप बॉडी को, चेंज इन शेप एंड साइज क्विकली, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. इजीली डिफॉर्म होता है लेकिन लार्ज एक्सटेंट में, लार्ज अमाउंट में, वेरी स्मॉल फोर्स, वेरी स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स, उसे कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. और उसका एग्जांपल है पुटी, PUTTY. जो पुटी होता है, वॉल पुटी, दीवार के अंदर जब क्रैक आता है, वी कैन फिल अप द क्रैक बाय यूजिंग थिक सॉलिड मटेरियल, दैट इज पुटी. लाइक व्हाइट सीमेंट जैसा होता है पुटी, एंड दैट इज स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ, इजीली डिफॉर्म बाय स्मॉल फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली plastic body. Okay, so this is about the elastic behavior of the material. Now the next point is concept of stress and strain. Concept of stress and strain. तो पहला है व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है, देखो अभी स्ट्रेस जब हम बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, अब ये रेगुलर शेप वाला बॉडी है, we apply the forces on the body. ये कौन से फोर्सेस है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस है. ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस. अगर बॉडी इलास्टिक है तो इनसाइड में से रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, RF, रिस्टोरिंग फोर्सेस. डिफॉर्मिंग एंड रिस्टोरिंग हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. बराबर है. ये देखो, डिफॉर्मिंग अप्लाई हो रहा तो उसके अगेंस्ट रिस्टोरिंग अप्लाई होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. सो इसमें बॉडी के अंदर क्या डेवलप होता है, ट्रेस. क्लियर. तो ट्रेस जो होता है, ट्रेस का दो डेफिनेशन है, दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. Internal restoring force per unit area is called as stress. Simply F by A. Internal restoring force per unit area or external applied force per unit area. External applied force per unit area is also called as stress. जनरल फॉर्मूला है उसका, ट्रेस इक्वल टू F by A. अप्लाइड फोर्स को
या फिर इंटरनल स्टोरिंग फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर? तो ऐसा यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? अभी ट्रेस का यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसे आप पास्कल भी कह सकते हैं सिंबॉलिकली, पा। जो प्रेशर का यूनिट होता है सेम फॉर ट्रेस, ऐसा यूनिट। डायमेंशन आएगा इसका, डायमेंशन इक्वल टू फोर्स। न्यूटन क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, दैट इज L2। ऊपर आने के बाद ये हो जाएगा m1 L1 और ये -2 ऊपर आने के बाद 1 - 2 दैट इज L -1 और T एज इट इज -2। तो डायमेंशन है उसका m1 L -1 T-2। सो दिस इज अबाउट द ट्रेस। दूसरा है स्ट्रेन। क्लियर? नाउ व्हाट इज द स्ट्रेन? STRAIN। अभी स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ ट्रेस। ट्रेस जो होता है अप्लाई होने के बाद बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुआ है, डायमेंशन बॉडी का चेंज हो जाएगा, शेप चेंजेस, लेंथ चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस। तो चेंज टू ओरिजिनल, क्या चेंज हुआ और पहले ओरिजिनली क्या था, उसका मेजरमेंट हम स्ट्रेन से लेते हैं। ओके, सो स्ट्रेन इज अ रेशियो, ये डायरेक्ट रेशियो में आएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, change in dimension to the original dimension, change in dimension to the original dimension is called as strain। इसे strain कहा जाता है। change in dimension to the original dimension called as strain। so strain is a ratio, strain क्या है? रेशियो है सिमिलर क्वांटिटी का, therefore it is pure number, इसे प्योर नंबर कहा जाता है। इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसे यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है, इट इज अ प्योर नंबर, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। क्लियर? सो दिस आर द टू डेफिनेशन, ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद है टाइप्स ऑफ ट्रेस। नेक्स्ट पार्ट इज द टाइप्स ऑफ ट्रेस। types of trace। so depending upon the deformation होने से बाद बॉडी में क्या चेंज हुआ है, लेंथ, एरिया, शेप, तो उससे हम ट्रेस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली ट्रेस हैव 3 टाइप्स। ट्रेस के टोटल 3 टाइप्स है। पहला होता है टेंसाइल, और इसे लॉन्जिट्यूडिनल भी कहा जाता है, टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल ट्रेस, टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो देखो अभी इधर, दिस इज द सपोर्ट एंड वन वायर इज सस्पेंडेड टू दिस सपोर्ट। ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल A, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या किया है, एक लोड अप्लाई किया है बॉटम में, कुछ तो भी वेट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये लोड अप्लाई होने के बाद ये लोड है, सपोज F इक्वल टू mg। क्लियर? तो ये लोड इट इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द एंड ऑफ द वायर। तो वायर का इलांगेशन हो जाएगा ऐसा डाउनवर्ड, लेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन वो स्मॉल है, मिलीमीटर माइक्रोमीटर में वो वेरिएशन होता है, इंक्रीज। डायग्रामेटिकली आप बड़ा देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो इलांगेशन है इट इज सपोज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। वायर का ओरिजिनल लेंथ है L, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें जो ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है वो लेंथ वाइज, डिफॉर्मेशन हुआ है लेंथ वाइज। सो लॉन्जिट्यूडिनल ट्रेस क्या आएगा, इफ डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस a change in length, deformation of body produces change in length, then it is longitudinal trace, it is a longitudinal trace। शॉर्टकट L डॉट S भी कह सकते हैं आप, longitudinal trace और टेंसाइल ट्रेस। तो इक्वेशन आएगा इसका, longitudinal trace is equal to applied force divided by area of cross section, F by A। अप्लाइड फोर्स अगर mg है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा पाई r स्क्वायर। क्लियर?
इसका यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई में। ठीक है। सेकंड टाइप है वॉल्यूम स्ट्रेस, टाइप नंबर 2 वॉल्यूम स्ट्रेस। अब ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, अब ये रेगुलर शेप वाला बॉडी, सपोज ये एक स्पेरिकल बॉडी है, इसका वॉल्यूम है ओरिजिनली v। अब इसके ऊपर हम अलग अलग डायरेक्शन से जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो साइज है, शेप नहीं है, साइज चेंज हो जाएगा, बराबर है। वॉल्यूम डिक्रीज, v डैश इज अ डिक्रीजिंग वॉल्यूम। ये एक बॉडी है। दूसरी बात क्यूब है, क्यूबिकल बॉडी है ऐसा, दिस इज अ क्यूब, ये क्यूबिकल बॉडी है। तो वी अप्लाई द फोर्सेस ऑन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन से हम जब फोर्सेस अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर तो इसका भी शेप वॉल्यूम चेंज हो जाता है, साइज चेंजेस, शेप डज नॉट चेंजेस। इफ डिफॉर्मेशन produces a change in volume of body. Deformation produces change in volume of body. और the perpendicular force, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, perpendicular forces produces change in size of body, change in size of body। लार्ज साइज स्मॉल हो जाएगा क्योंकि बॉडी कॉम्प्रेस होता है, वॉल्यूम डिक्रीज, इसका मतलब प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। परपेंडिकुलर फोर्सेस प्रोड्यूस चेंज इन साइज ऑफ बॉडी, दैट ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। और इसका जो फॉर्मूला आएगा ना वॉल्यूम ट्रेस का, ऊपर लिखते हैं हम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस। यहाँ पे आएगा देखो, वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट बॉडी, F by A, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो बेसिकली ये डीपी में जाता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रेशर। डीपी का मतलब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर ऑफ बॉडी, चेंज इन प्रेशर, क्लियर। पीक का मतलब है प्रेशर, डीपी चेंज इन प्रेशर, चेंज दैट इज पॉजिटिव, इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज। नाउ तीसरा टाइप है अपना भी स्ट्रेस का, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस, शेयरिंग। अभी शेयरिंग वर्ड जो होता है, इट इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ बॉडी। तो देखो अभी शेयरिंग स्ट्रेस में एक क्यूब का वन फेस लिया हमने। क्यूब जो होता है, क्यूब को 6 फेसेस होते हैं, उसमें से एक फेस को हमने कंसिडर किया A, B, C और ये D। ओके, दिस इज वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूब। अभी हम क्या करेंगे, इस एक लेयर के ऊपर वे अप्लाई फोर्स एट कॉर्नर A। ये जो कॉर्नर A दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सपोज ये डिस्प्लेस करेगा लैटरली, लैटरली मतलब हॉरिजॉन्टली, डिस्प्लेस द मॉलिक्यूल फ्रॉम A टू A डैश, बराबर है। तो यहाँ से हम, ये फिक्स पॉइंट है, AD फिक्स है, तो कितना एंगल से वो डिस्प्लेस हुआ, सपोज थीटा, थीटा इज द एंगल फॉर दैट डिस्प्लेस फोर्स। उसी समय ये जो मॉलिक्यूल है इसका इफेक्ट B2 ये जाएगा B डैश, B2 B डैश विद एंगल सेम थीटा, दोनों एंगल इक्वल है। तो यह क्या हुआ, लैटरली मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ, A टू A डैश, B टू B डैश। सो चेंज इन शेप, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस a change in shape. The trace is called शेयरिंग स्ट्रेस। उस ट्रेस को हम क्या कहेंगे, शेयरिंग ट्रेस कहेंगे। या फिर टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, फॉर्मूले से आप ऐसा भी ले सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू FT,
एफ टी का मतलब है फोर्स अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी. ओके, एफ टी बाय ए, दैट इज अ शेयरिंग स्ट्रेस. तो ये जो होता है ए टू ए डैश, और इससे ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड फिक्स लेयर, जो भी होगा ये डी पॉइंट है ना. सो दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस. इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन सेम आएगा यहाँ पे m1 L-1 T-2 सबका, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस एंड longitudinal stress. So these are the three types of stress. Okay.